good morning. I'm Professor Pratima Yadav. I'm teaching here at SOL. As you know, this class is about economic development. Your topic is basically this class is for economic development and policy in India. So what we will do today, today is your first class. I hope you people know about this. Today is the first class. So we will go one by one. Might you have checked, I have given you today for, issues in growth, development, sustainability. However, I will try to give you the picture about what is the, economic growth basically stand for. So let's see some of the pictures, some of the question I will try to, give you. And then I hope that will engage you enough to think over what growth and development means. I hope you people have a very good sound background of last 2 years, doing the micro, macro. I hope you all are aware about what is the, consumption, production, how the firms behave in the market, what is the welfare. In macro, I hope you people are able to do some of the courses related to, consumption function, GDP, investment, Philip curve. So those things, principle of micro and macro, I hope you people have done a bit of, homework on that as well. Because most of the time, what I will do, I will refer those things. However, I'm not going to tell you in details. If I say investment, there is a meaning in investment in economics. And I hope this is the final 5th years of in your, fifth semester of your course. So you people are aware about that. However, I will first project some of the basics question of economic development or growth. What does mean? There is any difference between economic growth and development? And also, I will try to link this economic growth and development with production, because that is the very basic way of understanding. If I will try to give you example of India, might will be not much more interested, but if I will give you production things that would have been done, my first or second semester of BA first year, so you will be able to understand much more better than the rest. Okay, I hope you are doing well. So let's go. Here are some of the questions. So look for the answer to these questions whenever you are roaming in the society or thinking for what is the issues in growth and developments are and what is the sustainability. I will give you these 3-4, broader way of thinking. First, think about what are the facts about living standards and growth rate around the world. So what are the facts which determine the living standard and growth rate around the world? I hope living standard in the sense you have seen some of the people live in slums, some of the people live in, middle class houses, some of the people live in big apartments, some of the people live in big villas. So, and this also vary with country to country. Some of the countries are so poor they don't have a villas, they don't have big houses, might have the clay houses in those countries. So living standard suggests that how good you are eating. Living standard also include your housing, your food, your clothing, medicine, education, all those things, basic amenities of the society is considered a lot. So first thing, what are the facts about living standards and growth rate around the world? Second thing which I will try you to think for, why does productivity matter for living standard? Is it the country which produces more of any goods and services, they have better living standard than the rest of them? Is it there any correlation between that? If you produce more, and I will give you the example in productivity. Let's suppose a farmer whosoever produce more, is it they are well off and living better way than the rest of the farmers who has not producing as much? Second question related to that. Third, what determines productivity and its growth rate? What are the things basically determine the productivity? How you can produce more? Is there any growth rate on that? We will try to see that. Fourth question, which it's very much needed. How can public policy affect the growth and living standard? Is it the government of India or any public policy in the sense, mostly policies determined by government, central government of any country or state, they affect the growth and living standard of any country. These are the four questions
with this, we will try to see how better way we can explain. Okay. Also, this class, what I will do, 45 minutes, I will give you the lecture. Last 15 minutes, I will keep you for question answer session, so that I should know, are you understanding well, or I have to change my strategy of teaching. So last 15 minutes, this class will be for 10:45, 15 minutes. You are free to ask any types of question related to this topic, not random question, no. Whatever I'm teaching, you should be able to ask related to that only. Okay. So next slides, let's move. So this is the first picture. A picture is worth 1,000 statistics. Let's suppose this is the picture. A typical family with all their possessions in the UK. UK, as you know, United Kingdom is an advanced country, developed country. So if you're going to compare a country like India and UK, this is the family dinner, or having a lunch together. So how they're dressing up, what are the fruits and plate. You can see there are, how good the houses are around. So basically, this suggests that GDP per capita in UK is roughly around $39,000. Child mortality is 0.4%. 0.4%. Access to modern sanitation facilities 100%. Whosoever wanted to go to any healthcare facility, they are able to do it. Okay. Education allotment 60%. Enrollment is higher education equivalent 100%. Basic, but higher education 60%. Okay. This is the first things, advanced economy. These are the statistics. We can see that. Let's see what about the different kind of country. This is the second example. Take an example of Mexico. Mexico is a middle income country. Okay. This is the family dinner they are having. You can see, the background, the kind of housing structure is not as good as you have seen for UK. Here people are, moderately dressed, not the, very fashionable or anything. If you see in terms of statistics, GDP per capita in Mexico is $16,640. Child mortality is higher than the UK because of child mortality in UK 0.4, less than 1%, here more than 1%. GDP growth rate per capita was $39,000, here only $16,000. Access to modern sanitization facility 85%, there it was 100%. Education attainment only 30%. In case of UK, it was over 60%. So there is some difference between UK, Mexico. So this is Mexico is a middle income country. What about a poor country? So let's see this example of a third country. A typical family with their possessions in Mali, a poor country. Mali is an African country. So what kind of household? You can see, people are living in a mud house. They have not that concrete housing even. Possessions are very less. Here in this Mali country, GDP per capita is $1,510. Child mortality is approximately 12%. Access to modern sanitation facilities 25%. Educational attainment is only 7%. So basically the basic indicators, GDP, child mortality, access to modern sanitation facilities are much higher. GDP, access to modern facilities, and education is much higher in advanced and middle income countries than the poor. However, only child mortality is higher in case of poor countries. So this statistic saying something. If a country has grown, if a country has a development, the facilities are there. I hope people will get it. So let's put some more statistics that will give you some more clue. So here you go for that. Income and growth rate around the world. So here is the country. We have taken Brazil, Japan, China, Mexico, Germany, Indonesia, Canada, India, United States, Pakistan, Argentina, Bangladesh, and United Kingdom. We have talked about at beginning of the period. Let's suppose take the example of 1900, 2014.
period, how they have grown, how much they have, real GDP per person at the beginning, what was, and what is the at the end of 2014. What is the growth rate? You can see that at the beginning, Canada people has $2,527. At the end, they have $43,000. Similarly, in case of United States, it was a $4,000. Now it's in 2014, it was $15,860. However, a country like Pakistan, Bangladesh, they started with $663 and end up with $3,300. Also, the growth rate is lower for the Pakistan and Bangladesh as well. However, growth rate is not very high for even the United States, but their starting point is very, 3-4 times more than what Pakistan and Bangladesh can have. So there are two facts figures here we are getting. One is that vast difference in living standard around the world. So different country, if you take and try to compare them, there is a vast difference. If a person, European country, a developed European country, if you talk about France, Germany, UK, Spain, and other, good economic condition countries, and rest of, North America, Japan, they are much more advanced. Their per capita income is much more higher than the rest of the world. Second fact here, we talk about great variation in growth rate across the country. If you see the growth rate, there is a cross variation from Brazil to United Kingdom. United Kingdom has a lower growth rate, but base is very high. They started with 5,117 in 1900, early 19th century, beginning of the 19th century, and first up over first decade of 21st, beginning of 20th century, and beginning of 21st century. There is like they have grown from $5,000 to approximately $40,000. So these are the pictures why this is happening, why some of the countries are developed, why some are the left. That question, push us to think why some countries have better, growth rate than the rest of them. Okay, so let me give you some more details about the economic growth around the world. Because of differences in economic growth rate, ranking of countries by income changes substantially over the time. Okay, poor countries are not necessarily doomed to poverty forever. For example, Singapore income were low in 1960 and quite high now. Okay, first point, it doesn't mean that once you are poor, you are always the poor. Take the example of our country. When India got independence in 1947, we are very poor. I mean, almost more than 50% of the population was poor. But currently, less than 20% of the population below poverty line. So, country doesn't stagnate in one place if they work in right direction. Second point, we can find out that rich country cannot take their status for granted. They may be overtaken by poorer but faster growing economy. They may be overtaken by poorer but faster growing economy. In the second point, I'm trying to say that, rich countries, either it's UK, all the OPEC countries, 30 countries almost there, Japan from, UK, UA to Germany and others. They can't be always, great. And that I will give example of China. In 80s, China was not, second highest growing country, our second country with the highest $14 trillion GDP. But now China is stand there. So China is upper middle advanced economy, but 40 years before it was not that case. So a country can, move from, and that case you can talk about India. So now we are aiming for 5 trillion economy. Hopefully we will do it if all, do the things with very sincerity and effort. I hope we will be able to, link this gap and build a kind of different kind of growth rate in the country. So second point, I'm trying to say that, okay, what is the next? So let's
2-3 question. What are the question arises from this, slides which we have seen? Why are some countries richer than others? What do some countries grow quickly while others seem stuck in a poverty trap? I hope you people know about poverty. Poverty, it's talk about when government of India or any country like given by World Bank, if you are not earning $2 a day, or in some cases is $1.25 a day, then you become the poor. In India, because of our living standard and other details, we have different poverty measures. For rural, it's different. Urban, it's different. The poverty line is defined by Niti Aayog, which they do every 5 years. And accordingly, they use the consumption data to prove that. Okay. So first is why some countries are richer than the others. Second, why do some countries go quicker while others seem stuck in a poverty trap? Third question, which has much more engaging, is what policy may help raise growth rate and long run living standard? I hope you people aware about, public policy. People have heard about Narega, MNarega, which give you 100 days guaranteed work. You will get the money. So these kind of policy we talk about the government policy or public policies. So whenever the government of India or state government, if they introduce this kind of policy, is it the poverty is going to be down? Is it the poor people living standard going is to be better? That needs to be looked into. So let's think about in productivity term. A country's standard of living depends upon its ability to produce goods and services. Why production is important? Let's suppose if India is producing something, then a lot of people will be engaged. They will get the job, they will be paid, they will demand for goods and services. So production will be sold. So, people got their job, they got income, production, whosoever are part of that, they got the profit. This money will come and circulate, the more demand will generate, and therefore the growth path will start. So productivity is very important, because of once any kind of goods or services you produce, you employ the people and they create the demand. Okay, what is the productivity then? It's best to know the productivity. What is the productivity? Quantity of goods and services produced from each unit of labor inputs. That is the called productivity. Productivity is equal to Y by L, output per worker. So Y represent your output, L is the number of labors. So Y you can say is equal to real GDP. Quantity of output produced, L is quantity of number of labors. आपको मैं एग्जांपल दूं क्योंकि हमें बोला गया है कि हिंदी में भी थोड़ा हमें समझा दीजिएगा कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि कितना प्रोड्यूस होता है, आप ये समझ मान के चलिए कि मैं रेलवे का एक एग्जांपल लेती हूँ. आप सब लोग ट्रेन में तो जाते ही होंगे. आप ट्रेन की बात समझिए कि ट्रेन में 10,000 लोग जा रहे हैं, उसमें कुछ वर्कर भी तो होते हैं जो खाना पीना देते हैं, टिकट चेक करते हैं. तो सारे काम को मिला के जितना रेलवे का प्लेटफॉर्म सबको कुछ लोग होंगे कि हाँ भाई 100 लोगों को रेलवे ने एम्प्लॉय किया, इतने लोगों को, और कितने यात्री जो हैं सफर किए, यानी उस पूरे जो सिस्टम उसको यूज किया, वो हमारा वहां की केस में प्रोडक्टिविटी हो. प्रोडक्टिविटी इन द सेंस कितने लोगों ने उस जो सिस्टम रेलवे को है यूज किया, वो हमारा प्रोडक्शन होगा. तो जितना ही आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा लोगों ने सर्विसेज यूज किया कम से कम वर्कर के साथ, वो बेस्ट होता है. और उसका रीजन ये भी है कि कम लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी की बात कर ले कि आजकल पहले था कि आप विंडो खिड़की पे जाते थे तो टिकट देता था, प्लेटफॉर्म टिकट या कोई भी टिकट, आजकल वेंडिंग मशीन लगी हुई है. सो वो सारी चीजें भी इसमें काउंट होती हैं. तो प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है. प्रोडक्टिविटी बेसिकली होती है पर वर्कर. कुछ भी चीज आप प्रोड्यूस करिए, आप खाना ही घर में कोई बना रहा है, 10 लोगों का खाना बना, ठीक है, एक लोग ने बनाया तो वो हो जाए कि एक आदमी की प्रोडक्टिविटी है 10 लोगों के, अगर वो 2 लोगों ने मिलकर बनाया तो वो हो जाएगा 5 लोगों का खाना एक आदमी बना सकता है. वो आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है. हमने इसको बहुत सरल भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए इसको बहुत शॉर्टन कर दिया है. ओके,
सबको समझ आ रहा होगा, आई होप। सो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। व्हाई प्रोडक्टिविटी इज सो इम्पोर्टेंट? की डिटर्मिनेंट्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। प्रोडक्टिविटी इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो है लिविंग स्टैंडर्ड, जो आप लोगों ने पिक्चर पहले हमने आपको दिखाया था जिसमें कहा कि देखिए कोई यूके की अगर फैमिली है आउटिंग पे जाती है तो वो कैसी दिख रही है, एक मैक्सिको की फैमिली आउटिंग पे जाती है तो वो कैसे है, क्या खाना है क्या पीना है, एक माली में जो है आउटिंग जो उनका है, भाई आउटिंग का जगह ही नहीं है, कुछ ऐसा बना ही नहीं है, बाहर ही छत पे अपने खा रहे हैं तो किस तरह का मड में मड हाउस है उनका। तो आपका इसलिए जरूरी है प्रोडक्टिविटी क्योंकि ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड को क्वांटिफाई करता है। When a nation workers are very productive, real GDP is large and income are high. अच्छा, प्रोडक्टिव हर आदमी कितना चीजें, एक आदमी कितने काम कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर एक आदमी मिलकर 10 लोगों का खाना बना दे तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हुई। अगर वो 5 लोग मिलकर 10 लोगों का, तो 2 ही तो हुई ना प्रोडक्टिविटी। तो आपके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है एक नेशन के लिए कि उसका वर्कर का प्रोडक्टिविटी हाई होना चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी हाई होगा तो जीडीपी हाई होगा, जीडीपी बड़ा होगा, जीडीपी बड़ा होगा तो इनकम हर इंडिविजुअल की ज्यादा होगी। ओके, सेकेंड इसमें जो इंपॉर्टेंस है प्रोडक्टिविटी का वो है ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी इज द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ इन लिविंग स्टैंडर्ड। कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए उसके लिए जरूरी है ग्रोथ इन की प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड की जो लिविंग स्टैंडर्ड के ग्रोथ डिटर्मिनेंट्स है उनको वही हमारे की हैं। ओके, फर्दर उसी को एक्सप्लेन करते हुए हमने लिखा है कि व्हेन प्रोडक्टिविटी ग्रो रैपिडली सो डू लिविंग स्टैंडर्ड। कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत फास्ट तेजी से चलती है तो आपका जस्ट अ मिनट आई एम फीलिंग बिट ऑफ कि अगर आपकी व्हेन प्रोडक्टिविटी ग्रो फास्ट रैपिडली सो डू द लिविंग स्टैंडर्ड। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ती है तो लिविंग स्टैंडर्ड भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ता है। ओके, एंड इकोनॉमी इनकम इज द इकोनॉमी आउटपुट। कि एक कंट्री का जो भी आउटपुट होगा, इंडिया का जितना भी आपने प्रोड्यूस किया वो उसका आउटपुट भी वही होता है, और जितना आउटपुट करेंगे उतनी ही चीज उसकी इनकम होगी। इसलिए आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही जरूरी है। ओके, आप लोगों को समझ में आई हो, आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें डिटरमिनेंट्स की बात करके है कि भाई ये डिटरमाइन कौन सी चीजें प्रोडक्टिविटी को करती है। अच्छा, इसमें फिजिकल कैपिटल के है, उसका क्या रोल है, फिजिकल कैपिटल पर वर्कर है, यानी आपने जो भी, जैसे हमने कहा कि मशीनें अगर लगा दिया कि पर पर्सन कितने मशीनें अपने लगा दिया तो उसको हम लिखेंगे K/L, यानी फिजिकल कैपिटल कितना है। फिजिकल कैपिटल का मतलब मशीन है, स्ट्रक्चर, स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हमने खाने की बात किया आपको, तो अगर एक किचन का आप एग्जांपल अगर मैं आपको देके बताऊं, क्योंकि किचन तो सबके ही घर में होगा, तो किचन में भाई आपने क्या किया है, ओवन रखा है कि आपका रोस्टिंग की जो फैसिलिटी होती है वो रखा है, हीटर है, या आपको मैं बताऊं ग्राइंडर है, स्टोव हो गया, ये सारे उस केस में आपके इक्विपमेंट हो जाएंगे। एंड स्ट्रक्चर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और उस खाने बनाने की बात अगर मैं लेके एग्जांपल आप लोगों को बताऊं तो जो अदर उसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज हुए वो सारे फिजिकल कैपिटल के पार्ट होंगे, पर्टिकुलरली द ग्राइंडिंग, योर ओवन, योर स्टोव, जो भी एक तरह से ज्यादा जिसमें पैसे लगता है, टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं यूज है। अब ये है कि एक जो ग्राइंडर है उसको कितने लोगों ने चलाया और क्या उससे निकाला, उसकी बात अगर फिजिकल कैपिटल पर वर्कर, तो वो कहते हैं कि फिजिकल कैपिटल जो भी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। अच्छा, ये क्या बताता है भाई, प्रोडक्टिविटी इज हायर व्हेन द एवरेज वर्कर हैज मोर कैपिटल। अच्छा, ये भी सही है कि जितना आपका कैपिटल ज्यादा होगा उतने वर्कर की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मशीन तो जल्दी काम करने में सहायता करेगी ना। आजकल आप लोग देखते होंगे, पहले आप रोटियां बेल रहे हैं तो बहुत टाइम लगता था, आज मशीनें आ गई हैं रोटियों को, या आपने वो आपको डो बनाने की भी आ गई है, उसमें आपने आटा डाल दिया, पानी, वो डो बनाती जा रही है, तो आपका प्रोडक्शन जो होगा खाने का
वो तो ज्यादा हो गया ना, एक तरह से बहुत जल्दी जल्दी रोटियां बन के तैयार हो जाएंगी। तो बात यहाँ वो कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी इज हायर व्हेन द एवरेज वर्कर हैज मोर कैपिटल। कैपिटल का मतलब मशीन है या इक्विपमेंट हुआ, ये बात है। एन इंक्रीज इन फिजिकल कैपिटल पर वर्कर K/L causes an increasing प्रोडक्शन आउटपुट और इनकम Y/L। ये तो सब लोगों को समझ में आ गया। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट 2-4 चीजें और भी इसमें बात कर ले। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन का मतलब आदमी होता है ना, आदमी में भी कैपिटल है। आदमी का कैपिटल कब हो जाता है भाई? जब आप, बच्चा भी कैपिटल है, उसमें भी कुछ, क्योंकि बड़ा होगा तो वो ह्यूमन कैपिटल की आपने कितना है, नॉलेज कितना है, अंडरस्टैंडिंग कितना है, इंटेलेक्ट कितना है, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कितना कर सकते हैं, आपने जो है एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये सारी चीजें ह्यूमन कैपिटल के अंदर आती है। नॉलेज एंड स्किल वर्कर्स एक्वायर थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कि जो भी आपके नॉलेज एंड स्किल्स है वो आदमी जो एक्वायर करता है वो करता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बूते पे। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें एक बात और भी है भाई, ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर कितना है, कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल की लेते हैं और उसको हम लेबर से डिवाइड कर ले तो वो कितना है नंबर में, अगर हम देखना चाहें। उसको क्यों करते हैं? उसको हम लोग इसलिए करते हैं कि प्रोडक्टिविटी इज हायर व्हेन द एवरेज वर्कर हैज ए मोर ह्यूमन कैपिटल। यानी अगर हर आदमी बहुत ज्यादा स्किलफुल हो, उसके पास ट्रेनिंग भी हो, एजुकेशन भी हो, एक्सपीरियंस हो, प्रोडक्टिविटी की वो बढ़ा देगा। इसलिए ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर को जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ओके, अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि आप अगर ये लेके देखें कि एन इंक्रीज इन H/L कॉजेज एन इंक्रीज इन आउटपुट, तो जैसे ही आपका ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर अगर ज्यादा है तो आपका जो है आउटपुट या इनकम भी पर वर्कर ज्यादा होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी आ गई। चलिए अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट जो हमारा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में 2-4 चीजें और हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरल रिसोर्सेज है। अब भाई आप तो लोग तो जानते ही हैं, इंडिया में ऑयल के हमारे कुएं नहीं है, वी डोंट हैव द ऑयल वेल्स, बट ऑयल वेल कहाँ है? ऑयल वेल तो सारे आपके जितने भी ये अरब कंट्रीज हैं उनके पास है। तो प्रोडक्टिविटी के लिए ये भी जरूरी कि जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स आपके पास है या नहीं है, वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए उसमें इन्होंने बड़ा एग्जाम्पल, इनपुट इनटू प्रोडक्शन दैट नेचर प्रोवाइड्स, और उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा कि आप ले लीजिए एग्जाम्पल ऑफ ऑयल। चूंकि इंडिया के पास वो चीज नहीं है, वो लैंड हो सकता है, रिवर हो सकता है। अब आप पावर तो जनरेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन आपके पास कोई डैम बनाना, कहीं आपकी रिवर नहीं है, कुछ नहीं, तो डैम तो नहीं बन सकता। तो नेचर, वहां नेचर की बात है। ठीक है, आई होप यू पीपल आर गेटिंग। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है? नेचुरल रिसोर्स को अगर हम पर कैपिटा देखना चाहें कि अब ऑयल का आप एग्जांपल ले लीजिए कि ऑयल का जो वेल है इन अरब कंट्रीज में, वो नंबर ऑफ वेल कितने हैं, वेल्स कितने हैं, और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। तो जितना ही आपका नेचुरल रिसोर्स ज्यादा होगा, other thing being equal, more natural resources allow a country to produce more. Why? तो जितना किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे उतना ही उसका प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट भी ज्यादा होगा। An increase in natural resource divided by labor causes an increase in output. ये सब आप लोग नोट करते जाओ, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं और ये बड़ा ही आपको पूरा लिखने के लिए बिल्ड करेगा, आप लोगों को सोचने के लिए, इट विल बी गिव यू सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये तो दो चीज की भाई आपका ह्यूमन कैपिटल कितना है, लेबर कितना है और कैपिटल कितना है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब टेक्नोलॉजी की भी बात है। अब अमेरिका भाई आगे है क्योंकि उसने हर नई टेक्नोलॉजी उसने बिल्ड किया है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या सॉफ्टवेयर हो, कंप्यूटर की बात है, सारा रिवोल्यूशन तो अमेरिका से आया है। तो उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल नॉलेज क्या है। ओके, सो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है हमारे प्रोडक्शन को, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन का एक वो पार्ट होता है। सो लेट्स सी, society is understanding of the best ways to produce goods and services. Technological progress means, अब technological progress क्या है? A faster computer, a high definition TV
or a smaller cell phone. कि एक फास्टर कंप्यूटर, ए हाई डेफिनेशनल। अब मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल दूं कि आप किसी ऑफिस में, आप जो हैं आजकल भाई मोस्ट न्यू वर्जन में एक आपका 2004 का कोई पुराना कंप्यूटर है, तो आप कितना भी इसमें टाइप करना चाहो कुछ भी होगा नहीं, कुछ भी। या कोई अगर टेलीविजन ही है जो ओनिडा पहले 90s में आती थी, उस पर कुछ आप देखना चाहे कुछ वो धुंधली दिखाई देती है, पता भी नहीं चलता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी का मतलब प्रोग्रेस मीन्स फास्टर चीजें, जो भी आज का है जो जरूरत है उसके। अब आप आज स्मार्टफोन की बात होती है, स्मार्टफोन चाहिए। जब अर्ली 2000 में मोबाइल होना बहुत बड़ी बात होती थी, बट मोबाइल बस है, आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप नहीं उस पर चेक कर सकते, अभी आपको कोई चीज गूगल करना है नहीं कर सकते। तो वो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसे बहुत अपडेट होते रहना चाहिए। इसके अलावा ये भी जरूरी है, you know, also any advances in knowledge that boosts productivity allows society to get more output from its resources। कि किसी भी तरह का एडवांस नॉलेज हो। अब मैं एडवांस नॉलेज के बारे में आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ दूंगी कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा हो गया। क्यों हो गया? कोरोना की वजह से हो गया। अब कोई शॉप में जाना नहीं चाहता, कोविड है, कहीं ट्रैवल करिए कुछ भी करिए, सो देयर आर चांसेस माइट विल अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो कहीं कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, सो दैट यू हैव टू इनहांस योर नॉलेज और एडवांस योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट प्रोडक्ट यू कैन प्रोड्यूस द मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, हमने आपको कोरोना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट रिसेंट वन, ये थोड़ा पुराना है। हेनरी फोर्ड की अगर हम असेंबली लाइन की बात करें, वो हम कहेंगे वो पुराना है। आज की डेट में मैं कहूंगी कि आप जो बिजनेस अमेजोन कर रहा है, फ्लिपकार्ट कर रहा है, और जो भी अलीबाबा का जो है सेलिंग का, चाइना का अगर हम बात करें, सो दीज आर द ग्रोइंग फील्ड वेयर थिंग्स whatever today needs are there, they are able to meet those needs. Therefore, for any growth, determinants of productivity, कितनी ग्रोथ प्रोडक्टिविटी होगी, बिकॉज जितना प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना आउटपुट होगा, उतना इनकम होगा, उतनी ही ग्रोथ आपकी ज्यादा होगी। ओके, आप लोगों को समझ में आई होप आ रहा होगा। चलिए कुछ और पॉइंट्स थोड़े देख लेते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ कुछ और भी बात कर ले, कि दो चीजें हैं, एक तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वर्सेस ह्यूमन कैपिटल की हम कहीं से इन दोनों से थोड़ा सा करें कि इसके बीच में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आप। टेक्निकल नॉलेज में रेफर टू द सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, किसी चीज का हम प्रोडक्शन कैसे करें, अब उसमें हम बात करें कि पहले आदमी कार्बन कॉपी से आपको किसी चीज की कॉपी करनी है। जब हम छोटे थे अपने स्कूल में पढ़ते थे, तो भाई आपको अगर कॉपी करनी है किसी चीज की, तो कॉपी पेस्ट तो होता नहीं था। आप कोई चीज लिख रहे हैं तो कार्बन कॉपी कर लेते थे ताकि 4-5 कॉपियां निकल। आज कुछ भी नहीं है, आप एक लैपटॉप पे आप फटाफट लिख देते हैं, 4-5 प्रिंट आउट निकाल देते हैं, या एक प्रिंट आउट निकालते हैं, 5 उसकी फोटो कॉपी करा लेते हैं। सो दैट इज कि कहीं भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का मतलब होता है रेफर टू सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप थोड़े से थोड़े टाइम में, थोड़े से थोड़े पैसे में ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे, गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ यू कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अच्छा, ह्यूमन कैपिटल का क्या है, चूंकि दोनों में थोड़ा वर्सेस दिस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वर्सेस ह्यूमन कैपिटल की यहाँ हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल रिजल्ट्स फ्रॉम एफर्ट पीपल एक्सपैंड टू एक्वायर देयर नॉलेज। ओके, कि ये ह्यूमन स्किल है। एक तो हमने बता दिया फोटोकॉपी की बात, जो हमने एग्जांपल दिया कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कि आपने एक लैपटॉप या किसी सॉफ्टवेयर पे एमएस ऑफिस में लिख लिया, उसकी कॉपी निकाल दिया, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये भी होती है कि अब वो टाइपिंग जो है, देखिए बड़ा अच्छा हमने एग्जांपल ये दिया आपको कि वो टाइपिंग की स्पीड है। अब कोई धीरे 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 एक 1 by 1 वर्ड करेगा, वो तो टाइपिंग उसको बहुत टाइम लगे। कोई किसी को देखते हैं जो उसका टाइपिंग बहुत फास्ट हो। तो टेक्नोलॉजी जो आपकी है वो ये है कि आपने एमएस ऑफिस बनाया है, वो आपकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जो आपने टाइपिंग फास्ट करना सीखा, वो आपका ह्यूमन कैपिटल है। सो ये दोनों ही चीजें प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप है, एमएस ऑफिस है, सब कुछ है, लेकिन आप टाइप बुड्ढे की तरह एक एक चीज, एक एक वर्ड कर रहे हैं और बहुत टाइम लग रहा है, फिर वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का भी कोई मतलब नहीं होगा। And you can think over whenever there is a discussion with human capital and technological knowledge की बात जब भी हो, I think
you should think about this example which I have given. Okay, चलिए अब कुछ एक्सपर्ट से पूछ लिया जाए. Ask the experts. क्या है भाई, पूछना क्या है? इनोवेशन एंड ग्रोथ क्या है? किस बात को आप इनोवेटिव कहेंगे और कौन सा जो आपका, ये थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस आज करेंगे. नेक्स्ट वाली क्लास आप लोगों की होगी विच डे वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्लास, तो उसमें हम इसको डिटेल से आपको समझाएंगे. फिर आप लोग ये पेपर अच्छा से कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों की नेक्स्ट क्लास जो SOL की आप लोगों की है वो है 6 को, तो हम 6 को फिर बताएंगे. ये थोड़ा सा लेकिन इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आप लोगों को ओपन कर देंगे कि आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 7 मिनट और है लेक्चर के लिए. सो इनोवेशन एंड ग्रोथ. इनोवेशन क्या होता है भाई? देखिए, इनोवेशन वो होता है कि जो आज की प्रॉब्लम है, अब जैसे हमने कहा कि पहले कार्बन कॉपी भाई आपको करना पड़ता था, तो लोगों को लगा कि इतना मेहनत, आप 5 बार लिखो और 10 से ज्यादा आप अगर कोई चीज सॉफ्टवेयर में टाइप कर लेते हैं तो उसके आप 1000 कॉपी निकाल सकते हैं. कार्बन कॉपी में तो आपको बहुत दिन लग जाते हैं. तो इनोवेशन जरूरी है, क्योंकि उसका एक लिमिटेशन हो गया. अच्छा, इसको हम फॉर्मली अगर कहना चाहें तो उसको ऐसे कहेंगे हम लोग, फ्यूचर इनोवेशंस वर्ल्ड वाइड will not be transformed enough to promote sustained per capita economic growth rate in the United States and Western Europe over the next century as high as over the past 150 years. इनोवेशन का भी एक लिमिट होता है. ये कहना ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर जो इनोवेशन होगा वर्ल्ड वाइड वो उतना एनफ नहीं होगा जो कि सस्टेन कर सके. अच्छा, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई चीज, जो भी आपने कोई चीज बनाया, अब इसमें मैं एग्जांपल आप लोगों को एनवायरनमेंट का दूंगी सबसे बढ़िया, कि आप क्या है पॉल्यूट करते जा रहे हैं. दुनिया भर की गाड़ियां आपने रोड पे तो ला दिया, पोल्यूशन क्रिएट करते जा. क्या ये जितने रफ्तार से आप पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, क्या इससे लोग हेल्दी रहेंगे और जी पाएंगे? वो सस्टेनेबिलिटी है कि जितने नंबर आप हर साल 5 लाख, अगर 10 लाख गाड़ियां रोड पे आ रही हैं, तो क्या 10-10 लाख या 1-1 करोड़ गाड़ियां अगर आ रही हैं वो मार्केट में, आप तो क्या है सस्टेनेबल है, ये चलेगी? ये बात की बात है. इसमें कहना जो मैं चाह रही हूँ उसमें ये है कि भाई जो कुछ भी अगर आप यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न यूरोप की अगर आप लेते हैं, तो उसका मानना ये है कि द नेक्स्ट सेंचुरी एज हाई एज ओवर द पास्ट 150 इयर्स, कि ये कंट्रीज का जो सस्टेनेबिलिटी है शायद वो उतना ना कर पाए जो लास्ट 150 इयर्स में किया है. ओके, व्हाट डू इकोनॉमिस्ट से? अब इकोनॉमिस्ट इसमें क्या मानते हैं कि सस्टेन कितना करेगा? 34% कहते हैं डिसएग्री करते हैं, 7% कहते हैं कि चल जाएगा, और 59 का अनसर्टेन है. मैं जो हूं, मेरा मानना है कि नहीं, अगर आप गाड़ियां लाइए, या तो अगर गाड़ियां ला दिए तो पोल्यूशन जो क्रिएटर है, या तो आप किसी और अल्टरनेटिव पे जाइए. इलेक्ट्रिसिटी कार की बात करिए, डीजल कार, क्योंकि डीजल कार जो है बहुत तरह के उसमें से सब्सटेंस से जो धुआं निकलता है वो बहुत तरह के इन्वायरमेंट के फैक्टर पैदा करता है बाद. या तो इलेक्ट्रिसिटी कार पे आप चले जाइए, कुछ और अगर आप लेते आके लाते हैं अल्टरनेटिव जो पोल्यूशन ना क्रिएट करे मार्केट में, जो बहुत ज्यादा नॉइज ना हो, फिर तो सस्टेन कर जाएगा. अदरवाइज अगर आपने कुछ नया लेके नहीं आए, then it's not going to sustain. So I am like, we don't know still. Disagree तो नहीं मैं करूंगी, but we don't know. Is it we are going to have? Yes, Tesla is trying electricity car, but it is the refined one. It is the also ये भी है कि उसकी कॉस्ट इतनी है, क्या सब लोग उसको खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे? वो भी तो मसला है ना, कि आपने बना तो दिया, आपने अगर बना दिया कि $50,000 की एक कार है इलेक्ट्रिसिटी कार, किसके पास? अमेरिका में कोई चीज उसको नहीं खरीद पाएगा. आप अगर अमेरिका का भी आपने देखा है कि भाई कितना है, यूके अमेरिका मोरलेस सेम ही होगा, $50,000 होगा. $50,000 का उस साल में गाड़ी ही तो नहीं खरीदेगा ना, फिर खाना कहाँ से खाएगा, रहेगा कैसे? वो सारे वहां से मसले शुरू होते हैं. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फर्दर हम जब बात को, ये कहीं ना कहीं ये बात आती है कि इनोवेशन एंड ग्रोथ जो है, क्या जो जितना अभी तक हुआ है वो आने वाले 150 साल में उसी तरह से सस्टेन करेगा नहीं. तो हमारा इशू जो है, ये आज का जो हमने टॉपिक आप लोगों को रखा था इशू इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी. तो कहीं ना कहीं हमने ग्रोथ को डिफाइन कर दिया, आपके सस्टेनेबिलिटी को हमने छोटा सा लास्ट आते आती स्लाइड्स में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है. ओके, अब नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें हम इसको ज्यादा आपको
बृहद रूप में, बड़े रूप में। I will give you in full details. Here we are just left with 2 minutes, so let's shoot the question. यहाँ मैं अपनी स्लाइड्स अब बंद करती हूँ। आप लोगों से चाहूंगी कि आप लोग अब क्वेश्चन पूछें और मैं बैठ जाती हूँ ताकि वो क्वेश्चन पढ़ के फिर मैं आंसर देते जाऊंगी। ठीक है? Okay, everyone, ask the question. 15 minutes you have for the, ask the question. जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जहां भी कुछ क्वेश्चन लगे वो आप लोग पूछिए। Okay, there are 8 question. Okay, let me. अब मैं एक एक को रिप्लाई करूंगी आप लोगों को। Where you are shared the window, sharing is pause until you return to shared window. Okay, fine. तो सबसे पहला क्वेश्चन है मयंक का। मैम वी आर रेडी। अच्छा, ये शुरू में किया होगा, प्लीज टीच। हाँ, हिंदी में तो समझाया है ये सौरभ, हमने हिंदी में आप लोगों को समझाया, तो इसमें कोई बात नहीं है। मैंने हिंदी में भी ट्राई किया, नेक्स्ट क्लास में और भी ज्यादा मैं हिंदी कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभय का है मैम व्हाई डॉलर इज मोर वैल्यूएबल मनी एज कंपेयर टू अनदर कंट्रीज मनी लाइक इंडियन रुपीज एंड हाउ द ब्लॉकचेन टेक अफेक्ट ऑन वर्ल्ड मनी मार्केट। देखिए, ये हमारे आज का क्वेश्चन नहीं है, बट एक चीज मैं बता दूं, किसी भी मनी की वैल्यू जो होती है उसकी डिमांड पे डिपेंड करती है। यानी आप सामान ही ले लीजिए, जिस सामान की जितनी ज्यादा डिमांड होगी। अब मैं उसका एग्जांपल आपको कोविड वैक्सीन का दूं कि भाई ये तो बड़े बड़े जिसने डेवलप किया उन्होंने कहा कि लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इसलिए इसकी उतनी प्राइस नहीं फिक्स हो गई हुई। अदरवाइज इसकी अगर मार्केट पे फोर्सेस पे आप छोड़ देते तो इसकी प्राइस बहुत हाई होती एंड इट वुड हैव बीन वेरी हाई प्राइस्ड। तो जिस चीज की अब रुपीज की डिमांड कौन करेगा? किस केस में रुपीज की डिमांड होगी? रुपीज की डिमांड तब होगी जब आप एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपने एक्सपोर्ट किया, पेमेंट जो आपका आएगा वो इंडियन रुपीज में, तो जो भी डॉलर है उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, या तो उस केस में आएगा, या अगर लेट सपोज बिल गेट्स के पास भाई बहुत पैसा है, उन्होंने किसी इंडियन कंपनी में लगाया है, कोई सेक्टर में लगाया, तब वो इंडियन रुपीज में उनको चाहिए यहाँ खर्च करने के लिए, चीजें खरीदने के लिए। तो वैल्यू डिपेंड करता है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पता चलती है उसके डिमांड से, ऐसे ही रुपीज की भी होता है। ये टेक इफेक्ट अभी आप रहने दीजिए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों से कहूंगी जो अभी पढ़ाया गया है, जो हमने बताया है, वो क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपने इधर उधर का पूछने लगे which is not going to help you, please stick with your course first. Time रहता है, I don't mind explaining you the rest of the things as well. ठीक है, next question है तुबा। Okay, good morning sir, do you have a GRP of this subject? What is the GRP? Group of this subject. ये मेरे लिए नहीं है, I think group C is trying, Tuba she is trying to say group. Anonymous किसी ने लिखा, hello ma'am, the study material hasn't been uploaded yet, so we are really need the PDF or PPT prepared for this session. I request you to join on WhatsApp group, link for this. देखिए, वो मैं अपने से कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकती, ये SOL का है। SOL अगर कहता है जो उनको चाहिए, मैं SOL के लिए, तो आप लोग प्लीज SOL में रिक्वेस्ट डालिए कि हमें मटेरियल, मैम जो पढ़ा रही उनकी PPT चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हमसे कहते हैं तब हम करेंगे, ऐसे इंडिविजुअली पे तो नहीं होगा ना ये चीजें। ये भी हमने आपका आंसर कर दिया, किसी ने ये एनोनिमसली लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने लिखा है कि मैम प्लीज इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्रीन बाय चूजिंग द स्लाइड शो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास से कर देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, कोई बात नहीं, कर देंगे। नेक्स्ट है मैम, आर यू कंफर्टेबल व्हाइल ज्वाइनिंग इकोनॉमिक्स ग्रुप ऑन व्हाट्सएप? We will ensure that there will be minimum notice to group. देखिए, हम वो चीज ज्वाइन करेंगे जो SOL की तरफ से आता है। SOL अगर वो ग्रुप बनाता है, उसको कंट्रोल करता है, I don't mind, तो आप लोग कहीं ना कहीं SOL से कहिए कि सर आप लोग इसके एडमिनिस्ट्रेटर हो, हम बस स्टूडेंट को इतने जो है उनका ग्रुप बना दो, मैम को भी रख लो ताकि हमारे क्वेश्चन हो जाए, वो मैं कर लूंगी। बट इंडिविजुअल प्राइवेटली मैं नहीं समझती हूँ कि वो मेरे लिए भी ठीक होगा। भाई मैं SOL की एम्प्लॉय हूँ, तो आप SOL से आप लोग एक बार ही रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, प्लीज मैम PDF सेंड नहीं, देखिए जो मिलेगा आप कोई भी नंबर अपना आप लोग नहीं इस पे करिए, जो भी होगा
SOL की तरफ से वो सबको मिलेगा, हमारे लिए सारे स्टूडेंट इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप अभी जो पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें पूछिए, ये नहीं कि ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप इस पे कुछ भेज दीजिए, ऐसे नहीं होता है बच्चे लोग। जो होता है वो एक सिस्टम से जाएगा ना, सब हर स्टूडेंट SOL के लिए इक्वल है, तो आप ऐसे क्वेश्चन प्लीज नहीं करिए। मैम व्हेन रिजल्ट केम, देखिए ये तो मैं थोड़ा बता नहीं पाऊंगी, अब SOL इज टाइम प्रिपेयरिंग एंड होपफुली इट विल कम सून। मुस्कान का अच्छा है, ठीक है। पूजा ने पूछा है कि मैम प्लीज एक्सप्लेन द पर कैपिटा इकोनॉमिक अगेन। देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम, वो पर कैपिटा क्या होता है, यानी कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन का है, उसको जितने भी लोग हैं आपकी पॉपुलेशन का, आप तो मोदी जी को सुनते होंगे, आप लोग कहते हैं कि हमारा जो है 140 करोड़ की जो जनता है, तो जो भी है आपका, चाहे वो पैसा हो या आउटपुट होगा, उसको 140 से डिवाइड कर देंगे, इंडिया की अगर हम बात करें, वो हमारा पर कैपिटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हाउस होल्ड की बात करें तो 5 मेंबर अगर है, तो जो भी आपके घर में इनकम आ रही है उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो हाउस होल्ड का पर कैपिटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है पूजा आपका, पूजा यादव। अच्छा मेघा जैन ने लिखा है, मैम विल यू प्लीज टेल मी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए ग्रोथ कहीं ना कहीं, अब मैं बता, ये आप नेक्स्ट क्लास के बाद करिए, अभी आप बस फोकस करिए जो हमने चीजें बताई हैं आपकी। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब आप ये है बेसिकली। यस मैम, कुछ कहना चाह रही हैं आप कंचन मैम? अच्छा नहीं, सो आप मेगा थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी अभी हमने आज शुरू किया है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में बताने में, आप फिर ये क्वेश्चन मेरे से नेक्स्ट क्लास जब 6 को करेंगे तो आप जरूर पूछिएगा। मैम स्लाइड्स आर नॉट प्रॉपरली क्लियर। देखिए क्लियर तो सबको दिखी है, चलिए अब कैसा क्लियर नहीं लगा आप एक बार SOL को भेजिएगा, क्योंकि ये तो शेयर्ड है, वो शायद आप पता नहीं फोन में अपने देख रही हैं, कहाँ देख रही हैं, आई डोंट नो, आप अपना भी एक बार सिस्टम चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, दीपक पूछ रहे हैं मैम इंडिया में प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ाने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, टेक्नोलॉजी नॉलेज या ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और ह्यूमन कैपिटल। देखिए कोई भी चीज प्रोडक्टिविटी, दोनों चीजों का हमने आपको इसीलिए एग्जांपल दिया था सबसे एग्जैक्ट, कि आप MS ऑफिस है आपके पास, जिसमें हम वर्ड में कोई चीज टाइप करते हैं, ठीक है, वो सब प्रॉपर चल रहा है, लेकिन आपकी टाइपिंग स्किल बड़ी पुअर है, तो आप बहुत धीरे स्लो कर रहे हैं, फिर तो प्रोडक्टिविटी होगी ही नहीं ना। तो दोनों का, टेक्नोलॉजी भी हो, साथ में एक नॉलेज ह्यूमन कैपिटल भी हो, तब जाके वो अच्छा प्रोडक्शन आप जनरेट कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर थोड़ा कम बेसी हुआ, वो इक्वल में होने चाहिए, कि जितनी अच्छी आपने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया उतना ही ह्यूमन कैपिटल पे। इसीलिए तो आजकल बात होती है कि भाई पढ़ाई करिए, स्कूल जाइए, आप कोई स्किल सीखिए, सो दैट आप कहीं एम्प्लॉय हो सके, किसी कंट्री में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सके। ओके, अच्छा क्वेश्चन है दीपक आपका, बहुत ही, आई एम रियली इम्प्रेस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द, आप नेक्स्ट क्लास ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का देखिए, बेसिकली ये होता है कि कोई भी, हमने इसीलिए आपको एग्जांपल दिया कि गाड़ियों का, बड़े बड़े शहरों में जैसे आप देखती होंगी, जब दिसंबर जनवरी धुंधलापन है, ये धुंधलापन कोहरा नहीं है, ये जो है ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, और ये झाड़ों में ज्यादा होता है क्योंकि वो नीचे आ जाता है, सतह पे आ जाता है जो भी है नमी उसकी, इसलिए ऐसे दिखता है। तो क्या आप हर साल जो है 1-1 लाख का अगर आप भेज रहे हैं, लोग गाड़ियां ज्वाइन करवा, क्या ये चलता रहेगा? कोई भी चीज आप ले लीजिए, क्या जिस रेट से आप उसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, क्या ये चलेगा हमेशा के लिए? यानी हम भी उससे बेनिफिट हो, हमारे बच्चे भी हो, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो, वो सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। ओके मैम कैन यू प्लीज शेयर, देखिए वो ग्रुप में नहीं, रूपल आप लोग SOL को लिखिए कि ऐसा है कि हमें मटेरियल मिले या ना मिले, मैम की PPT हमें दिलवा दो, तो SOL को आप लोग लिखिए, फिर वो सबको मिलेगा ना, एक साथ मिलेगा, इंडिविजुअल का कोई हम भाई बात नहीं होती है। हाउ आई नो माई सब्जेक्ट विदाउट एडमिशन, हाउ आई नो माई सब्जेक्ट्स विदाउट एडमिशन? नहीं, अरे आपको क्या बात कर रहे हैं मुस्कान,
आप कुछ नहीं करना है, आप SOL की वेबसाइट पे जाइए, आप CBS पे क्लिक करिए, वो कहता है आपका प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होगा 5th सेमेस्टर का, वो डाउनलोड करिए, उसमें अपना जो भी आपका इलेक्टिव है इकोनॉमिक्स का वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है मुस्कान, आई होप आपको मैंने आंसर कर दिया है। अच्छा रूपल, मैम प्लीज एक्सप्लेन द टेबल अगेन। अच्छा टेबल में बात कुछ नहीं थी, वो टेबल जो था वो डिफरेंट कंट्रीज का, चलिए आप कह रहे हैं तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेट मी गो बैक। ये टेबल जो थी, एक मिनट, टेबल यही है ना, इनकम एंड ग्रोथ एंड अराउंड द वर्ल्ड, कि आपकी जो भी इनकम या ग्रोथ था वो 20वीं सदी के शुरुआत में क्या था, 21वीं सदी के यानी फर्स्ट डिकेड आफ्टर क्या था। बात यही है कि 1990 में से 1900 से लेके 2014 तक में क्या डिफरेंस रहा है, और उसी को कंपेयर करने की कहीं ना कहीं हम लोगों ने कोशिश किया है। और क्या अगर आपका ग्रोथ रेट कम है इसका मतलब है आप पुअर हैं, ऐसा तो नहीं है। वो आप बताइए, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, एक गरीब आदमी स्लम का आदमी हो और एक मिडिल क्लास का आदमी हो, दोनों को आपने 5-5 हजार रुपए दे दिए, तो स्लम का आदमी जिसकी 100 रुपए थी उसके लिए 5,000 बहुत बड़ा होगा। एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी सैलरी जो है शुरू हुई 5,000 से होती है, उसको आपने अगर 5,000 दे दिया तो उसमें उतना फर्क नहीं हुआ। 100 से 5,000 बहुत लॉन्ग जंप है ना। तो ये बात, इन सब चीजों में हमने आपको समझाने की दो चीजें बताई कि वास्ट डिफरेंस इन लिविंग स्टैंडर्ड अराउंड द वर्ल्ड, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को आप देखते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि आपने देखा कि आपका जीडीपी, रियल जो जीडीपी पर पर्सन है वो क्या है, डिफरेंस कितना उसमें, तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा डिफरेंस है अराउंड द वर्ल्ड। सेकेंड बात जो हमने कहने की कोशिश किया वो किया ग्रेट वेरिएशन इन ग्रोथ रेट अक्रॉस द कंट्रीज। आप ग्रोथ रेट का नंबर देख लीजिए कि भाई ब्राजील में 2.61 है या 2.5%, 2.59 आपका जापान में है, वहीं यूनाइटेड किंगडम में आप देख लीजिए 1.4 है। ये चीज यहाँ समझाने की हमने कोशिश किया है। अच्छा चलिए ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब टाइम हम लोगों का खत्म होने वाला है, सो लेट मी फिनिश, क्योंकि सब हमें एक साथ करना है। Kiran, ma'am, you can say those students who ask for PPT that they can take screenshot for। हाँ ये देखिए अच्छा है किरण का कि जिसको अगर लेना है आप स्क्रीनशॉट करते जाइए, क्योंकि ये PPT तो मैं दिखाती ही हूँ, वो भाई SOL की प्रॉपर्टी है, वो SOL अगर हमसे मांगते हैं कहते हैं फिर उनको हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। किरण का अच्छा आंसर है। ओके मुस्कान जो कह रही हैं हाउ आई नो माई सब्जेक्ट विद, अब बता तो दिया मुस्कान, कुछ नहीं करना है भाई, आप BA प्रोग्राम का 5th सेमेस्टर का एक फाइल है, जाके डाउनलोड करो SOL पे, वहां से आपको सब मिल जाएगा। चलिए हमने सबके आंसर कर दिए, वी आर डन। किसी को और कुछ है तो पूछ लो, अभी 2-4 मिनट बचे हुए हैं, 11 बजे ही बंद हो जाएगा। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। ओके और जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग एक बार जाके सिलेबस देख लीजिएगा और तब फिर ज्वाइन करिए। एक फर्स्ट रीडिंग आपको करके आनी चाहिए। आप लोग मैनक्यू खरीद लीजिए बुक, जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से, सब बहुत इजी, बहुत सरल भाषा उसकी है, तो मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूंगी थोड़ा सा एक रीडिंग करके आइए। नहीं सॉरी ये मैक्रो, ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, सॉरी ये बुक अगर आपको चाहिए तो 1 मिनट रुकिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने निकाला हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मैं बुक का बता दूंगी आप लोगों की, ये बुक ले लीजिए, सिलेबस तो देख ही लीजिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट टॉपिक के लिए डिफरेंट ऑथर होंगे, तो वो मैं एक कोई ऑथर अभी बता नहीं सकती। ओके और किसी का कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो, कुछ हो तो आप प्लीज आप लोग कर लो। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, 2 क्वेश्चन आ गए। ओके मैम पहला क्वेश्चन से ये कुछ आपने लिखा तो है नहीं। मुस्कान आपका क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया। दीपक ने लिखा है मैम यूके की बिगनिंग भी अच्छी थी और उसका
पास्ट टेक्नोलॉजी और ये दिस उसका ग्रोथ रेट नहीं, वही हमने एग्जांपल दिया आपको कि एक स्लम का आदमी जिसका स्टार्टिंग 100 से होता है 5000 मिल जाए, उसका ग्रोथ रेट आपको ज्यादा दिखेगा। लेकिन एक मिडिल क्लास का आदमी जो 5000 कमाता है, अगर उसको आपने 5000 दे दिया तो उसका ग्रोथ रेट कम दिखेगा। बेस की बात है। ग्रोथ रेट फॉर्मूला नहीं पढ़ा आप लोगों ने मैक्रो में, ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? हाँ, ग्रोथ रेट तो यही होता है ना आपका कि 2010 में जो भी आपकी इनकम है या 20 में जो इनकम है वो माइनस लास्ट ईयर 2019 में 21 का लीजिए, 2021 की आपकी इनकम माइनस 2020 की इनकम डिवाइडेड बाय 2020 और नंबर ऑफ ईयर्स कर लेते हैं। इस केस में नंबर ऑफ ईयर्स 1 है, वो ग्रोथ रेट बताता है। ये तो क्वेश्चन आपको नहीं पूछना चाहिए। मैक्रो अगर आपने पढ़ा है रियल में लास्ट 1 ईयर पूरा, सेकेंड ईयर तो मैक्रो 1 और मैक्रो 2 है, ग्रोथ तो उसमें एक पार्ट है भाई। सो चलिए, फिर भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने दोबारा नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, फाइन मैम। क्वालिटी लो आ रही है, मैं नहीं समझी आपका क्वेश्चन विक्रम। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अच्छा ओके मैम। व्हाई वी कांट टॉक विथ यू इन माय, अब देखिए ये तो SOL से कहे, हम भी अच्छा होता कि आप लिखने की बजाय पूछ लेते 1 by 1, एक एक को स्टॉप करके, वो जल्दी जल्दी होता। आपके लिए लिखने से लिए जल्दी तो कुछ होगा। देखिए अब इसी में कुछ लोग नुआंसेस भी तो पैदा करते हैं ना, तो आप लोग अगर अच्छे हैं, लगता है, आप रिक्वेस्ट जरूर भेजिए कि नहीं हमें एक्सेस दीजिए मैम से, हम लोग अपने क्वेश्चन पूछ पाए जब पढ़ाती हैं तो। ठीक है, सो क्लास इज डन, सी यू ऑन वेडनेसडे सेम टाइम, ओके 10 to 11, fine, 11 to 10 to 11. Thank you so much, bye bye, nice time.